everyone. So, today I'm going to tell you about market structures. Like, what is the bare minimum that you should know about market before you start trading is market structure. So, basically, I'm assuming that you all must be already knowing about higher highs and higher lows. Like this movement of the market is called, this is higher low, then higher high. Market is again and again making new highs and forming lower lows, and forming new highs and then lower lows. But when market makes a shorter high and breaks the previous lows, this is called break of structure. Market was moving up, then it broke this strong low. Why this is strong low? Because it has broken above a high, a swing point, a beginning of the wave. So if the market has broken that swing point, then this is strong low because it has strength to break the previous high. So similarly, this point will become a strong high, this point. Because it has broken below this low. And this is called change of character. Price was moving up, then it broke down. This is change of character. While moving up, this is break of structure. It is moving in the same direction, but when it reverses against the ongoing trend, then that is called change of character. Okay, so we'll look on these structures. And one more thing, like this is a wave. Okay, this is a strong low, broke above it. This is a strong high, price broke below this and formed this low, a new low. Now price may move up from this point, or price may continue moving down. If it continues moving down, it will move like this. Okay, so within a wave there are other smaller structures, as you can see here also. From this point to this point, prices formed two new highs. This was a previous high, took a pullback below this level also, and then formed a new high. So now it didn't go up straight. Yeah, at this point it did, but in the middle it took some halt. It went up, took a little pullback. Although it was not of many candle pullback, but still there was a pullback. The high was on a different candle, the low was on a different candle, and then again it moved up. Okay, so you should know at least this much, I'm expecting. Although I've given you a brief about all those points. So now let's move to the important part. So now, as we can see, the price was moving up. In the gold, the price was moving up. It made a new high, took a pullback, again made a new high, took a pullback, made a high, took a pullback, small pullback, then again a high, then again a pullback, and then again made a new high. Now, at this point, when the price made a new high, they were all the buyers here. People were buying. People were buying here, assuming that the price will continue moving up. Okay. So, but the price took a sharp rejection, made a wick below this level. Keep in mind, it did not give any candle close below this level. It just made a wick, then started to move up. Now, let me show you one more thing. Now the price started to move up, but there was a fair value gap at this level also. Okay, there was a bearish fair value gap because the price fell sharply. It did not mitigate this area, so there was a good fair value gap. Now what the buyers did, they closed above this fair value gap with another fair value gap. We are seeing the strength in buying. This is inverse fair value gap. Now, oh my god, now you can see the strength of inverse fair value gaps. The price was not able to give a single candle close below this level. It was a wick but no candle closing. We can mark this as IFVG. And again we'll see what is IFVG. When there is a fair value gap in the previous candle,
but the price reverses and with such a momentum that it creates another fair value gap while reversing. So that fair value gap when overlapped with the previous fair value gap is called inverse fair value gap. जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स थे उनको नलिफाई करके और उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर्स आ गए हैं इस पॉइंट पे, और यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है. कितनी सारे कैंडल्स बने यहाँ पे, बट उनमें से कोई भी नीचे क्लोज नहीं कर पाया. विक्स बने एंड तुरंत बाइंग आ गई इस एरिया से. प्राइस ने थोड़ा सस्टेन किया यहाँ पे, इसको ब्रेक डाउन दे के सेलर्स को भी ट्रैप किया होगा एंड देन इवेंचुअली प्राइस मूव्ड अप. सो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस वाज मेकिंग न्यू लो, took a pullback, then made a new low, then again there was a reversal. प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे सारे बायर्स को पहले बुलाया. इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देख के बायर्स आए, ये ब्रेकआउट देख के बायर्स को श्योर हो गया प्राइस ऊपर जाएगा. सब ने यहाँ स्टॉप लॉस प्लेस किया, मार्केट नीचे आया, पैनिक हुआ बायर्स में. उसके बाद यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, सेलिंग आनी थी तो यहीं से आनी थी, नहीं आई सेलिंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया. प्राइस सस्टेन कर रहा है इस लेवल पे, हैमर बना दिया. इस हैमर पे हम बाय कर सकते हैं या फिर हम वेट कर सकते हैं इस हाई के ब्रेक होने का, इस पे हम बाय कर सकते हैं. जैसे ये हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के लो के नीचे यहाँ पे सेल, रेस्ट इज अ टारगेट. सो हमको यहाँ पे दो कंफर्मेशन मिले. पहला कंफर्मेशन मिला जब प्राइस ने बायर्स का लिक्विडिटी स्वीप कर लिया. हो सकता था ये फेक स्वीप था, हो सकता है प्राइस यहाँ से गिर जाता, इसलिए हमने इसको पहले से अज्यूम नहीं किया कि ये लिक्विडिटी स्वीप है. कुछ लोग बोलेंगे कि कैंडल पे वॉल्यूम ज़्यादा हो तो हमको पता चल जाता है लिक्विडिटी स्वीप है. दे हैव देयर आर्ग्यूमेंट्स, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल इट वॉज अ लिक्विडिटी स्वीप. हाउ कम? यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर वैल्यू गैप. आपने पहले, और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप भी हम नहीं देख रहे, मेनी टाइम्स वो फेल भी कर सकते हैं, बट व्हेन यू कंबाइन इट विद ट्रेंड, मोमेंटम, स्ट्रक्चर, everything makes sense. The price was completely bullish here. There was a buying shown, called all the buyers. उसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुआ. नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि व्हाट इट माइट बी. क्या ये एक स्वीप है या रन है, क्या है. यहाँ पे हमने देखा देयर इज अ फेयर वैल्यू गैप, बेरिश फेयर वैल्यू गैप. सो नाउ वी आर लुकिंग क्लोजली एट दैट गैप, द बिहेवियर ऑफ द प्राइस एट दैट गैप. Price quickly moved through that gap. It gave a closing with a fair value gap. Now it indicates that this might be a liquidity sweep because the internal structure is bullish and the candles are also showing bullish momentum. Okay, it is respecting. It mitigated halfway through the IFAG and made a small pullback. It went down quickly and then again. This time we had a wick above this level. सो रिस्क टेकर्स यहाँ पे भी पोजीशन बना सकते हैं कि फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट मिल रहा है, IFVG को रिस्पेक्ट मिल रहा है, स्ट्रक्चर हमारा बुलिश हो सकता है. और जो रिस्क नहीं लेना चाहता वो इस लेवल की कैंडल क्लोजिंग के ऊपर अपनी पोजीशन डाल सकता है इजीली. यहाँ पे भी आप डाल सकते हो. यू कैन सी प्राइस ने एक न्यू इंटरनल हाई बना दिया. एक्सटर्नल हाई नहीं बनाया बट इंटरनल हाई बना दिया. सो इट माइट कंटिन्यू. उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे ही बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई. यहाँ पे हम देख सकते हैं सब ने बाई किया. जैसे प्राइस इसके ऊपर गया एवरीवन बॉट इट. सी, जैसे प्राइस इसके ऊपर गया कंफर्म हो गया कि ये लिक्विडिटी स्वीप था, न्यू हाई बनेगा अब, एवरीवन बॉट इट. दिस इज हाउ यू कैन यू कंबाइन स्ट्रक्चर नॉलेज विद ट्रेंड विद फेयर वैल्यू गैप्स, एंड दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड. इसके आगे अब हम देखते हैं हाउ डिड मार्केट बिहेव. लेट मी सी वीडियो कितना लंबा हो गया. ओके, लेट्स सी वन मोर टॉपिक. सो प्राइस यहाँ पे आया इस लेवल तक. सी आई हैव नॉट ओके. सो प्राइस यहाँ तक आया इस लेवल तक. मैं ये कह रहा था कि मैंने कोई ये स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, कुछ पहले से लिखा नहीं है इसके बारे में, तो जो भी है मैं ऑन द स्पॉट ही चार्ट देख के बताऊँगा आपको. सो डोंट एक्सपेक्ट मैं फ्लो में सब बोल दूँगा. आई विल ऑल्सो सी विद यू.
तो यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेट किया, जैसे ऊपर आया यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया नीचे, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो गई, जैसे ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हुए, दे वर एक्सपेक्टिंग कि हाँ प्राइस अब तो गिर ही जाएगा, यहाँ पे भी सेल कर रहे होंगे, दे वर लाइक अब तो गिर ही जाएगा, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था फिर, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, दिस इज अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप, price did not mitigate to the midway, but yeah, just tapped into the FVG and reacted from that level. Let's see how it went up. Again it came down, okay, फिर से नीचे आया, डीपर पुल बैक लिया, बड़ा बिग बना, न्यू हाई बनाया, यहाँ पे सारे बायर्स आ गए इस लेवल के नीचे, सारे बायर्स आ गए इस लेवल के नीचे। अब प्राइस ने पूरा मिटिगेट किया, और लेट्स सी कैसे रिएक्ट करता है, 1 2 कैंडल्स क्लोज, अभी भी इसके ऊपर क्लोज दिया, ओके, क्या पता ये रिस्पेक्ट कर रहा हो, लेट्स सी ओके, मेड अ न्यू हाई, ओके, पुल बैक ले रहे हैं यहाँ पे। सो नाउ अभी भी हम कुछ ट्रेड नहीं कर सकते, बिकॉज सी यहाँ पे ट्रेड हम करेंगे तो क्या बाय स्ट्रक्चर है अभी, दिस इज अ बाय स्ट्रक्चर, ओके, सो विल वेट, दिस इज अ पुल बैक, दिस इज अ मूव, दिस इज अ न्यू पुल बैक, इंटरनल स्ट्रक्चर सेलिंग का है, बट यहाँ पे हमको ऊपर की तरफ पुल बैक मिला, कॉन्ट्राडिक्शन है, सो विल वेट, ओके, हम और वेट करेंगे, लेट्स सी हाउ वी वेट, व्हाट डज मार्केट से, वी आर स्टिल वेटिंग। सी मार्केट ने दोनों तरफ फिसल खाया, ठीक है, मैं ऊपर गया, बायर्स को बुलाया, उनके सेल खाए, सेलर्स को बुलाया, उनके सेल खाए, वापस नीचे आ गया, बट समटाइम्स इट्स वाइज टू वेट, मार्केट देख के आपको पता चलना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट लेवल अभी इसने स्वीप नहीं किया, इंटरनल स्ट्रक्चर वही जनरेट किया है, पुल बैक, लेट्स सी, ओके, कैंडल क्लोज कर रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर इस लेवल पे हो गया है, तो ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है मार्केट ने, सो एट दिस लेवल मार्केट गेट चेंज ऑफ कैरेक्टर टू द अपसाइड, small inducement, yeah, we can say this small inducement, यहाँ पे बायर्स को बुलाइए, लिक्विडिटी है, यहाँ से मार्केट गिर भी सकता है, आई थिंक, बिकॉज ये ऑर्डर ब्लॉक है, बट वी ऑल्सो हैव लिक्विडिटी है, सो अभी हम कोई पोजीशन नहीं लेंगे, सी दिस इज अ ट्रिकी सिचुएशन, ये स्ट्रक्चर पूरा बुलिश है, ये स्ट्रक्चर पूरा बुलिश है, बट इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पेंडिंग है, यहाँ एक्सटर्नल लिक्विडिटी पेंडिंग है, यू आर सीइंग, आई एम जस्ट शोइंग यू लाइव मार्केट एनालिसिस जो ट्रेडर्स फेस करते हैं, if you know market structure then also you face this, now I'll see what we should do, यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी पेंडिंग है इस मेजर स्ट्रक्चर की, यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी पेंडिंग है इस स्ट्रक्चर की, तो अब हमको अगर बाय करना है तो हमको मार्केट यहाँ पे कोई बाय सेटअप देगा, इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पे जनरेट करेगा, स्वीप करेगा, फिर देगा और इसको रिस्पेक्ट करेगा, इट विल नॉट गो बिलो दिस लेवल, ठीक है, अगर इसके नीचे जाता है तो भी हमको वही चीज़ें चाहिए, सो लेट्स सी, अगर इसके नीचे जाता है तो हम सेलिंग में देखेंगे, और लेट्स सी व्हाट डज मार्केट डू, ओके, मार्केट आया हाफ पे तक आया, फिर न्यू लो बनाया, पुल बैक लिया, फिर हाई बनाया, सो नाउ व्हाट डज इट लुक लाइक, दिस लुक्स लाइक अ ट्रैप, दिस लुक्स लाइक अ बियर ट्रैप, शॉर्ट ट्रैप, मार्केट ने दो हाइज ब्रेक किए यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर बुलिश है, ये स्ट्रक्चर बुलिश है,
और यहाँ पे भी इसने ब्रेक करके दिखाया, बट ऊपर क्यों नहीं गया, क्यों नहीं है मार्केट ऊपर ये लिक्विडिटी लेने, क्योंकि ये लिक्विडिटी पेंडिंग है नीचे की। यहाँ पे जो बायर्स को ट्रैप किया इसने वो लिक्विडिटी पेंडिंग है ना। व्हाट डू यू थिंक, इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया मार्केट में, इतना सेल ऑफ आया, उसके बाद मार्केट एकदम से पलट जाएगा। यू विल थिंक वी शेप रिकवरी, वॉल्यूम कहाँ है यहाँ पे, वॉल्यूम नहीं है ना, वॉल्यूम भी नहीं है। सो और यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप हुई है, कोई एक्सटर्नल हुई है क्या, नहीं हुई है ना। बिना एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप के आप लॉन्ग ले लोगे तो वो एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है। अगर आप ऐसा ट्राई करते हो ना बिना एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप के जस्ट रिवर्सल पे लॉन्ग ले लेते हो, वो एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। यहाँ पे ये लिक्विडिटी पेंडिंग था, इस वजह से मार्केट को नीचे आना था, ये इंटरनल लिक्विडिटी पेंडिंग था। तो नाउ वी कैन सी मार्केट इस एफ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट एफ ये भी नहीं कर रहा है, इसके नीचे भी क्लोजिंग दे रखा है। सो इट्स ऑब्वियस कि ये लिक्विडिटी अब लेगा, यहाँ पे जो भी बाइंग स्ट्रेंथ थी वो जा चुकी है यहाँ से, सो इट्स ऑब्वियस ये लेगा, हाई प्रोबेबिलिटी लेगा। नथिंग इज ऑब्वियस बट या। सो नाउ एग्जैक्टली व्हाट वी एंटिसिपेटेड, मार्केट आया, ये लिक्विडिटी लिया, कैंडल क्लोज दे दिया, और इस लेवल के नीचे भी कैंडल क्लोज दे दिया। नाउ व्हाट, नाउ वी टर्न बेरिश, मार्केट ने अब कर दिया है चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक स्ट्रॉन्ग लो के नीचे क्लोज कर दिया है। ऐसे कैसे बायर्स को यहाँ पे ट्रैप किया, दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर, नाउ देयर इज अ फेयर वैल्यू गैप एट दिस लेवल, might be on 30 minute। Let's see what market do, took a sharp turn, call all the buyers, went below, it will, it should, no, okay, लो नहीं बना पाया, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिए, यहाँ लिक्विडिटी है, नहीं लिया, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, पुल बैक हाई, पुल बैक हाई, एंड देन सी मेजर सेलर्स यहाँ पे जैसे ही लेवल क्रॉस हुआ इस लेवल के ऊपर आ गए थे ना। सी यहाँ पे मार्केट जब था एट दिस लेवल, व्हाट वी थॉट कि यहाँ पे सारे सेलर्स ट्रैप हो गए, यहाँ पे सारे बायर्स ट्रैप हो गए, मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया मार्केट ने, नीचे आया, फिर यहाँ पे सेलर्स थॉट दैट दे वॉन कि हाँ हम सही है, हमारा डायरेक्शन सही है, रिवर्स कर गया मार्केट, बट कोई यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट जोन नहीं है, एफ को भी उतना रिस्पेक्ट नहीं किया है, बट हाँ थोड़ी बहुत सेलिंग हुई, सेलर्स को भी बुलाया, आए सेलर्स, एंड देन दे गॉट ट्रैप्ड, एवरीवन गॉट स्टॉप्ड आउट बाइंग, मार्केट ने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक करके बाइंग शो की, गुड अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी वाज हियर नाउ, एवरीवन वाज बुलिश। Then market also tried to take support of this level. FVG के नीचे कैंडल क्लोज हुई, प्राइस ट्राइड टू मूव अप बट फेल्ड, हाई चांसेस मार्केट अभी लिक्विडिटी लेने आएगा। Market came, took this liquidity and then reversed.
सी ये मार्केट ने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाया, लो था, फिर लोअर हाई बनाया। यहाँ से मार्केट लोअर लो बना सकता था बट लोअर लो नहीं बनाया। यहाँ से मार्केट ने लोअर हाई बनाया, सॉरी लोअर लो बनाया और फिर हायर हाई बना दिया। सी दिस इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो मार्केट ने अब फॉर्म किया है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिक्विडिटी कहाँ पे है? यहाँ पे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिक्विडिटी सिप किया, फिर मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, ठीक है। अभी कैसे पता लगेगा कि ये रियल है कि नहीं? इसके ऊपर क्लोज होगा तब कंफर्म पता लगेगा। बस रिस्क टेकर्स पहले भी एंट्री ले सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। ऑर्डर ब्लॉक पे आया, बाइंग कराया, इधर स्वीप मारा, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, स्वीप मारा, ये देखो स्वीप मारा, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, पुल बैक पे बाय करो, टारगेट्स लो, डन। बड़े बड़े टारगेट्स लो, चीज तो ऊपर जा सकता है। Okay guys, that's for today. We'll meet for another lesson. So you can follow for more such insightful analysis of gold or whichever pair you want me to do. Thank you.